will start about in this session we are going to discuss about the numerical based on Newton's law of motion. So how we are going to tackle the Newton's law of motion, we will check it and you will find it is easiest way to apply these equations. But before going to start, I'll first want to once again explain about the Newton's law of motion. The Newton first law says V is equal to U plus AT. This is the Newton first law. Now Newton second law says S is equal to UT plus half AT square. In the similar fashion, the Newton's third law says V square minus U square is equal to 2AS. So these are the Newton's first, second and third law. Based on this law, we are going to discuss the numericals. But before going to start this numerical, I want to explain what all these terms. You know very well this small t stands for time. This A stands for acceleration. This S stands for displacement. And one more thing, this V stands for final velocity. This U it stands for initial velocity. Okay, so these are the terminology you should familiar with, and then only you are in a position to solve the questions based on the Newton's law of equations. And remember friends, it's very easy for you to apply these rules. Now we will proceed further and I'll take one example. This is the illustrations number 1, or you can say this is the first example. In this case, let's say here is a body. This body move with initial velocity u, and the initial velocity, let's say this is 10 meter per second. Now after time t 4 seconds, the body changes their speed, and new speed is, let's say, 20 meter per second. So in this questions, find acceleration. This is the first question. So how you are going to calculate this? Now you have 3 formulas. First one is V is equal to U plus AT. This is first formula. S is equal to UT plus half AT square. This is second formula. And the third formula is V square minus U square is equal to 2AS. This is third formula. So we should understand which formula is really works over here. तो इस केस में आप ये देखिए कि कौन कौन सी क्वांटिटी आपको दी गई है, विच क्वांटिटी यू हैव गिवन ओवर हियर. तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको u दिया गया है. इसका मतलब u आपको पता है, ठीक है. उसके बाद आपको टाइम दिया गया है, राइट. इन दिस क्वेश्चन टाइम इज़ गिवन. इसका मतलब टाइम आपको पता है, ठीक है. यहाँ पे जो ये v है, now see over here, that is v. ओके, ये v होती है क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो v भी दिया हुआ है। तो ज़्यादातर जो साइन है प्लस का, आप देख पा रहे हो जो भी राइट साइन है वो ज़्यादातर फर्स्ट इक्वेशंस में बन रहा है। सेकंड इक्वेशंस आप नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि आपको यहाँ पे s नहीं पता है, ठीक है, इसलिए ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करना है और थर्ड वाला भी नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ भी s हमें पता नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन है जिसको हमें चूज़ करना है वो हमें फर्स्ट वाला चूज़ करना है। तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। अब देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए। v जो दिया है आपको ये वैल्यू v है क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है। तो v जो है वो 20 है, u जो है वो 10 है, प्लस a तो कैलकुलेट ही करना है और टाइम कितना दिया है 4 सेकंड्स। तो अगर आप लोग इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं इसको। अगर इस इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये 10 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 10, यहाँ पे हो जाएगा 4a। इसको अगर आप सब ट्रैक करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे आएगा 4a। और अगर आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 10, लेट्स से 10 इज इक्वल टू 4a। सो a इज इक्वल टू 10 बाई 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जस्ट राइट ओवर हियर, राइट ओवर हियर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिए कि ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है, ठीक है यूनिट। इफ़ यू आर नॉट प्लेसिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर your number will be reduced. Now in this case, let's once again I'll check these questions and I'll try to explain one more questions based on it. Now suppose, okay, now suppose if in the same questions they want to find the displacement that is s। अगर मान लीजिए वो s भी पूछ दिया कि बताइए कितना होगा, s माने डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस को, एक बार हम वापस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए अगर आपको s कैलकुलेट करना है तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें पता होना चाहिए। अगर आप सेकंड अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे s कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको u पता होना चाहिए। तो यस हमें u पता है, t पता होना चाहिए, यस हमें t भी पता है, a पता होना चाहिए, हमने अभी भी a कैलकुलेट कर लिया है तो a भी पता हो गया है, और फिर से t आ गया तो t भी पता है। तो यस वी कैन अप्लाई इक्वेशन नंबर 2। क्या हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, देख लेते हैं। हमें v पता होना चाहिए, यस हमें v पता है, यस भी पता है, राइट। u पता होना चाहिए तो u भी पता है, ओके। a पता होना चाहिए तो a भी पता है। तो यस वी कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑल्सो। सो इन दिस केस यू कैन चूज either of 2 or 3, in both the way you will get the answer। तो एक बार आप देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, ओके, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। सो हम लोग अभी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ओके, जस्ट यूर हियर। तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं थर्ड वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2as। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे u दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2, और a का वैल्यू भी आप लोग लेके आए हो 2.5, और s कितना दे रखा है वो तो कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ s ऑल्सो। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो अगर आप देखिए तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400, दिस इज 10 का स्क्वायर तो इट बिकम्स 100, इट बिकम्स 5 इंटू एस। तो यू विल सॉल्व इट, इट विल 400 में से 100 गया तो
300, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ s। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 वन जा 5, 5 6 जा 30। तो ये यहाँ पे s इज इक्वल टू आ गया 60 मीटर। 60 मीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस में मेज़र किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसी सीरीज़ में हम लोग आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कितना इजी है इस रूल्स को अप्लाई करना। हाउ इट इज़ ईजी फॉर यू टू अप्लाई दिस रूल्स। अब इमेजिन करिए आपके पास, यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे एक जो है बॉल है, राइट। ये बॉल की इनिशियल स्पीड है u इज़ इक्वल टू मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, t दे रखा है, यहाँ पे t दे रखा है, मान लीजिए आपको दिया है यहाँ पे t 2 सेकेंड्स। ठीक है, और एक्सेलरेशंस भी दे रखा है आपको, एक्सेलरेशंस मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड्स स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये गेंद की शुरू की स्पीड थी, वेलोसिटी थी, राइट। थोड़ी देर बाद जब गेंद में ये एक्सेलरेशन आया है 2 मीटर पर सेकेंड्स, तो गेंद की वेलोसिटी चेंज हो गई और ये हो गई v। तो अब आपको इस क्वेश्चन से बताना है कि v कितना है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। और तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ फाइंड v, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड s माने डिस्प्लेसमेंट, यानी s का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट यहाँ पे था, दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे ये सेकेंड स्टेट है, तो इतना दूर जितना दूर ट्रैवल किया है दैट इज़ कॉल्ड s। तो ये s भी कैलकुलेट करना है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए। आई थिंक यू आर इन अ पोजीशन टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अभी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे कुछ हिंट देता हूँ कैसे अप्लाई करोगे। तो वंस अगेन यू विल राइट ऑल द फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है बच्चों लोग बताओ? v इज़ इक्वल टू u प्लस at, दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला। व्हाट इज़ सेकेंड फार्मूला? s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकेंड फार्मूला हो गया। एंड व्हाट इज़ थर्ड फार्मूला? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as, दिस इज़ थर्ड फार्मूला, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें चेक करिए कि कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है आपको। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और स्टार्ट करिए। क्या यहाँ पे v दिया हुआ है? आंसर है नो, तो v नहीं दिया है। क्या u दिया है? आंसर है यस, u है, तो u है, राइट। a दिया हुआ है, यस a है। t दिया हुआ है, यस t दिया है। तो अब आप देख पा रहे होंगे इसमें टोटल 4 चीज़ें हैं, v है, u है, a है, t है। 4 में से 3 दिया है, तो 4 में से 3 दिया है, इसका मतलब आप जो v दिया है वो उस v को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप अगर v कैलकुलेट करना चाह रहे हो ये, तो आप इस इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे, राइट। आप सेकंड को अप्लाई नहीं करेंगे, थर्ड को अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे s है, ये देखिए s है, और s आपको पता नहीं है, तो इस वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसको। तो अब आप इसके लिए आंसर इस इक्वेशन से आएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। अब नेक्स्ट बारी है s कैलकुलेट करने की। तो s कैलकुलेट अगर करना है तो आप देख पा रहे होंगे, देखो अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यू विल गेट द आंसर ऑफ v ऑल्सो। तो अब आपको v भी पता हो जाएगा, राइट, ये v भी पता हो जाएगा, और u पता है ऑलरेडी, a आपको ऑलरेडी पता है, तो आपको ये s कैलकुलेट हो जाएगा। यानी सेकंड को अप्लाई करने के लिए आप ये थर्ड वाला भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी इच्छा है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई सेकंड वाला, तो देखते हैं क्या सेकंड अप्लाई हो पाएगा। तो u पता है, यस, t पता है, यस, a पता है, यस, t पता है, यस, तो यस वी कैन अप्लाई सेकंड ऑल्सो। तो अब आप चूज़ कर लीजिए कि एदर यू आर अप्लाइड 3 और 2, इट्स अप टू यू। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके आप में से बहुत कम बच्चे, many of you are still not giving the answers of these questions. So be prepared, be ready, and solve these questions and send it back to me. And I'm not requesting you, remember this, it's my order to you. You should do it, okay? Solve each and every numericals, it is very important.
because these are the questions that is maybe come in your exam, and if you are not in a position to write the answers, you will be get trouble. Remember this. So don't forget all these things. Once again I am explaining, and one more thing I want to explain. If you have any doubt related to my videos, please comment it so that I can improve it if any further if anything is possible. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चंस देते हैं आपको। और सबसे पहले आप क्या करिए, फिज़िक्स में यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट, यू शुड लर्न 2 or 3 times, you will revise all the topics. Don't think that you will revise only once, and you should be in a position to understand all the concept of the physics. So be prepared, be revise all the topics. Once again you will revise it and make a proper notes, so that you are able to revise all the topics at any instant of time. And in case if you are not in a position to get the notes, then I'll give it to message to me, so that I'll make arrangement for the notes also. Okay, and if you want the PDF of this particular topics, I can send it back to you. Okay, if you want, you will please comment it. Okay, so I'll take one more questions based on this, and this time you have to be answered once again another questions. Okay, तो एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चंस ये है कि अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक जो है ये, लेट्स से दिस इज़ अ साइकिल इज़ मूविंग अहेड। इसकी शुरू की वेलोसिटी दे रखी है, मान लेते हैं ये है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद साइकिल ने अपनी स्पीड चेंज कर दिया। साइकिल ने अपनी स्पीड क्या कर दिया बच्चे लोग, बताओ। साइकिल ने अपनी स्पीड चेंज कर दिया। अब इसकी स्पीड है v, और v बराबर ले लेते हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं दे देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। हियर इज लेट्स से डिस्प्लेसमेंट। इस समय डिस्प्लेसमेंट जो है वो दे देता हूँ मैं आपको ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट। और ये डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं कि लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ 75 मीटर। सो कैलकुलेट ए। इन दिस केस आपको एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करना है, और जब एक्सेलरेशंस आ जाए, जब फाइंड द एक्सेलरेशन। ओके, तो अब आप लोग एक्सेलरेशंस फाइंड करेंगे, और उसके बाद जब एक्सेलरेशंस आ जाए तो अब आप लोग फाइंड करिए कितने टाइम में ये वेलोसिटी अचीव करेगा। तो यानी सेकंड क्वेश्चन ये हो गया कि टाइम। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस from my side of today's homework. You should do it and send it back to me. Okay.